Assalamu alaikum class, how are you? As you all know that we have started our chapter 14, which is macromolecules, and in that we have read about carbohydrates, proteins, etc. And now our next topic is lipids. Today we have to talk about lipids. What are lipids? What is the basic definition of lipids? It is heterogeneous group of compounds that are insoluble in water, but they are soluble in organic or non-polar solvents. Heterogeneous means they have different types of atoms present in them. Heterogeneous group of compounds insoluble in water, but soluble in organic and non-polar solvents. And what are basically the building blocks of lipids? These are two usually, which are fatty acids and glycerol, and the third can be sterols. Fatty acid, what is fatty acid? Fatty acid is basically a carboxylic acid in which there is a long chain of aliphatic carbons present in it. For example, ये हमारे पास है fatty acid RC double bond OH. This is a carboxylic group, लेकिन simple carboxylic acid cannot be considered as fatty acid. अगर ये R ग्रुप एक लॉन्ग कार्बन चेन होगी तो इट मीन्स ये क्या है फैटी एसिड, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड. तो फैटी एसिड्स आर दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स which have long alkyl chains in them. Then next building block is glycerol. Glycerol is this structure, is a triol. ओल का वर्ड जहाँ यूज होता है इसका मतलब वो अल्कोहल है, उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप. ग्लिसरॉल के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, इसे कहते हैं ट्राइओल. CH2OH, CHOH, CH2OH. So this is the structure of glycerol. What is basically the use of lipids? Lipids आपको पता है कि as a food factor use होता है, like proteins and carbohydrates. Lipids are present in our dairy products like ghee, margarine, etc., and are present in our vegetable oils like coconut oil, olive oil, etc. So there are two types of fats or lipids, which are animal lipids or plant lipids. Animal fats or animal lipids are those which are stored in adipose tissues, and we obtain them from animals, like I talked about butter, ghee, margarine, etc. Plant lipids or plant oils are received from nuts and seeds, for example coconut oil, olive oil, soybean oil, etc. Alright, they are also used in paints, cosmetics, pharmaceuticals, and one important use is formation of soaps and detergents. Soaps और detergents बनाने के लिए भी हम lipids को use करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा reaction है जो soaps और detergents बनाने के लिए use होता है. Now come to the structure and composition. Again, glycerol first basic unit and fatty acid. Glycerol जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, fatty acid जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर लॉन्ग एलिफैटिक चेन पर. एलिफैटिक, you know what is aliphatic? Aliphatic is basically the long straight chain of carbon atoms. Okay, what happens is that it is ester formation reaction. आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी अल्कोहल और एसिड कंबाइन करते हैं दे फॉर्म एस्टर. तो यहाँ पे बनेगा ट्राई एस्टर, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, इसीलिए हमने 3 फैटी एसिड लिए हैं, तो ट्राई एस्टर विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर. क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन, अल्कोहल का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों कंबाइन करके वाटर रिलीज करते हैं. अब यहाँ से हाइड्रोक्सिल भी निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल गया. दे विल रिलीज वाटर. दिस O will be connected to this carbon. Now come here. CH2O, this O, it is connected to carbon, C double bond O, which is connected to R. ये एक ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं फैटी एसिड्स के, तो हर ऑक्सीजन के साथ इसी तरह से ये वाला मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाएगा. और वाटर क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल और तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे. ऑलराइट. Okay, so depending upon the fatty acids, our triglyceride can be of 2 types. It can be saturated, it can be unsaturated. Fatty acids can be saturated or unsaturated depending upon this carbon chain. I told you this R is basically a carbon chain. Look over here, CH2O, C double bond O, same molecule like this. This R, इसको मैंने जनरल स्पेसिफिक किया, यहाँ पे R जनरल था, यहाँ पे मैंने alkyl ग्रुप लगा के इसको स्पेसिफिक किया है. Now you can see in this carbon chain a double bond, CH double bond CH. These are all single bonded carbon, CH2 7 CH2 groups,
then a double bond, and again 7 CH2 groups and CH3. So this double bond means that R is unsaturated, it has unsaturation in it. So fatty acid was unsaturated. तो इस तरह के जो unsaturations होते हैं they have low melting and boiling point, इस वजह से they are liquid at room temperature. अब अगर क्या हो, अगर इसके अंदर हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होती CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसका मतलब तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता, डबल बॉन्ड ना होता, तो इट वाज सैचुरेटेड लिपिड, सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड. जो सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वजह से दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. राइट, नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ lipids. We can classify the lipids into 3 types: simple, compound and derived. Simple lipids are those which are made up of 2 things: fatty acid and alcohol, and that alcohol can be probably glycerol. जैसे यहाँ पे हमने पढ़ी glycerol, fatty acid plus glycerol. तो ये जो acids होंगे, ये जो lipids होंगे, they will be simple lipids. Compound lipids are those in which fatty acid and glycerol combine with some other radical or other group. जैसे कि glycolipids. Glycolipids are those in which this lipid is combined with a carbohydrate. Carbohydrate और ये lipid जब combine करते हैं they form glycolipids. Second example is lipoproteins. Lipo means lipids and proteins. When lipids are bonded to or attached to proteins, they form lipoproteins, which are compound lipids. Then again, third category is derived lipids. They are derived from simple and compound by hydrolysis. इन दोनों का जो हाइड्रोलाइटिक कंपाउंड है, हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट है, दैट इज नोन एज डिराइव्ड लिपिड. इसकी एग्जांपल है स्टीरोल्स या फिर विटामिन डी. नाउ कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. लाइसिस इज ब्रेक डाउन, हाइड्रो मीन्स वाटर, सो ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस. जब हम वाटर ऐड करते हैं किसी भी अपने ट्राइग्लिसराइड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज, तो यहाँ से क्या होता है, जो हाइड्रोलिसिस के बाद वो मोनोमर्स मिलते हैं हमें जो जुड़ के ये ग्लिसराइड बना रहे थे. आपको पता है ये ग्लिसराइड किन मोनोमर से बना है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. तो हाइड्रोलिसिस पे इट विल रिलीज ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड. जहां से ये स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके ये खत्म हो गया बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन. इसको हमने ब्रेक कर दिया इनटू इट्स मोनोमर्स. इसके मोनोमर्स कौन से थे? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. सेकेंड वन इज स्पोनिफिकेशन. स्पोनिफिकेशन इज बेसिकली द प्रोसेस जिसमें हम सोप्स बनाते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, अपने एस्टर को, अपने ट्राइग्लिसराइड को, अपने लिपिड को ट्रीट करवाते हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे क्या होता है, ये बेस इसको स्पोनिफाई कर देती है, इसको सोप में कन्वर्ट कर देती है. एक यूनिट हमारे पास आता है अल्कोहल जो ग्लिसरॉल थी, CH2OH, CHOH, CH2OH, एक यूनिट ये रिलीज हो गया. द सेकेंड यूनिट इज RC डबल बॉन्ड OO. वैसे तो यहाँ पे फैटी एसिड में H होता है इसके साथ, बट इन केस ऑफ स्पोनिफिकेशन यहाँ पे क्या होगा, दिस OH, CH2OH, CHOH, CH2OH. अब ये N रह गया, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव. RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव. ये हमारे पास क्या है, सोप. सो स्पोनिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच सोप इज प्रोड्यूस्ड. इसमें हम क्या करते हैं, बेस के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं अपने एस्टर को एंड इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोनोमर्स. वन इज सोप, 2 प्रोडक्ट्स, वन इज सोप एंड द अदर वन इज glycerol. Now coming to third example, third process, third chemical property, वो है हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स. हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स का मतलब ये है, ऑयल्स मैंने आपको बताया दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड फैट्स दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ऑयल्स के अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, अनसैचुरेशन होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. व्हाइल फैट्स दे आर यूजुअली सैचुरेटेड, और उस सैचुरेशन की वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. हम मार्जरीन वगैरह बनाने के लिए, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, घी बनाने के लिए, ऑयल से घी बनाने के लिए या फिर मार्जरीन बनाने के लिए हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड जो प्रोडक्ट है उसको सैचुरेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. अब हम कैसे करेंगे, अगर हम इस बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन ऐड कर दें, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो ये बॉन्ड हो जाएगा सिंगल. तो ये आपके पास अनसैचुरेशन कन्वर्ट हो जाएगी सैचुरेशन में. सो एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ दिस ऑयल. 6 हाइड्रोजन मीन्स 3H2, 3 into 2, 6 हाइड्रोजन. So 1 hydrogen will be added over here, CH2,
CH2 single bond and the second hydrogen will be added on this carbon CH2. तो ये आपके पास unsaturation से saturation आई है, which means hardening of oils. इससे हम क्या करते हैं, ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं.